वीडियो हम कार्यक्रम के बीच में दिखाएंगे। इस बीच में आमंत्रित कर रहा हूं पल्लवी कालानी को कि वे डॉक्टर मोहित शर्मा जी का परिचय दें। पल्लवी कालानी। Jai Shri Krishna. Dr. Mohit Sharma completed his graduation from SP Medical College, Bikaner in the year 2003, and then he served as a medical officer in the government of Rajasthan. He completed his post-graduation in MS in general surgery from the same institute, and then in continuation, he cleared super specialty entrance for cardiovascular and thoracic surgery. He completed his super specialty in cardiac surgery in the year 2015 from SMS Medical College, Jaipur. During his career curriculum, he has published 40 outstanding research papers in various national and international journals. He has worked as assistant professor and head of the Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery at JLN Medical College, Ajmer, and Government Medical College, Kota. At present, he is working as assistant professor in the Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, SMS Medical College, Jaipur. He has demonstrated a strong work ethic and enthusiasm to learn and teach as well. He has also delighted the Department of Pediatric Cardiac Surgery, Fortis Escorts Hospital, Jaipur, as associate consultant with his excellent clinical competency in pediatric intensive care and congenital cardiac surgery. Despite his professional competence and because of his inclination towards spiritual growth, he is also working as the Art of Living faculty and teaching happiness programs. His sessions related to science and spirituality has been conducted to the Premium Institutes of India. One of his researches, Effects of Sudarshan Kriya Yoga on Cardiovascular Parameters, was published in Heart India Journal and cited in so many ongoing researches. Apart from this, he has also conducted various sessions in the most eminent institutes that include AIIMS Jodhpur, SMS Medical College Jaipur, IIT Chennai, Fortis Escorts Jaipur, Mahila Janana Chikitsalaya Jaipur, JLN Medical College Ajmer, District Medical Associations of Rajasthan Sikar, and has also been invited as guest lecturers on stress management by Rajasthan State Electricity Board, Jaipur. We welcome you, sir, and thank you for sparing your valuable time. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आपको सबको दिखाई दे रहा हूँ ऑडियो विजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी ऑनलाइन सेशन होते हैं उसमें पहला क्वेश्चन ये होता है, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? दिखाई दे रहा हूँ और सुनाई दे रहा हूँ। उसके बाद अपन आगे कहानी शुरू करते हैं। ओके, सबने अंगूठा उठाया, मतलब लेट अस स्टार्ट विद द शो। शुरू करते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ ये कोविड से ज्यादा हेल्थ रिलेटेड सेशन होने वाला है तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कोविड एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ओके, मेरे को ये पूछना जरूरी है, शुड आई कंटिन्यू इन इंग्लिश और हिंदी? यहाँ पर हिंदी भाषी ज्यादा है सुनने वाले या इंग्लिश भाषी ज्यादा है सुनने वाले? और हिंदी हिंदी डॉक्टर, हिंदी। ओके, क्योंकि मेरा परिचय जिस भाषा में हुआ, मुझे लगा कि सभी लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश सुनने वाले हैं। एनीवे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कुछ लोग होंगे शायद जो थोड़ा सा इंग्लिश को भी प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हिंदी में नहीं समझाई जा सकती हैं। तो शुरू करते हैं एक महाभारत की एक कहानी से, है ना। मेरे बहुत सारे सेशंस में कुछ लोग तो रिपीटर होंगे जो यहाँ आज मेरे लगभग अभी पिछले एक महीने में 15 से 20 सेशन हुए हैं, तो उनमें से कुछ लोग तो हर बार सेशन में होते ही हैं कि आज कुछ नया सुनने को मिलेगा। एक महाभारत की कहानी से शुरू करते हैं, और इस कहानी का प्रेजेंट सिग्निफिकेंस है कोविड के साथ में। कहानी यूं है, महाभारत के युद्ध के वक्त जब कौरव और पांडव आमने सामने थे, तो कौरवों की टीम से लड़ने वाले थे द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु। अब पांडव कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, लेकिन द्रोणाचार्य के सामने तो वो नहीं जीत पा रहे थे। उनकी प्रॉब्लम की भाई द्रोणाचार्य गुरु है, गुरु के सामने तीर कैसे चलाया जाए, गुरु के सामने युद्ध कैसे लड़ा जाए।
जब भी पांडव संकट में आते तो उनके संकट मोचक कौन होते थे? श्री कृष्णा। तो गए कृष्ण की शरण में और सवाल किया कि प्रभु मार्गदर्शक बताओ हमें कैसे हम इन द्रोणाचार्य से पार पा सकते हैं। तो कृष्ण ने एक सॉल्यूशन दिया कि भाई देखो, युधिष्ठिर जो है वो है धर्मराज, और युधिष्ठिर जो कहेंगे वो एज सच सत्य माना जाता है। तो बोला भाई ठीक है, युधिष्ठिर बिल्कुल धर्मराज है। और द्रोणाचार्य की जान बसती थी किसमें? उनके पुत्र अश्वत्थामा में। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अपन अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारेंगे और अपन युधिष्ठिर से उद्घोष करवाएंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनने के बाद द्रोणाचार्य ऑटोमेटिकली हथियार डाल देंगे और अपन उन पे काबू पा लेंगे। वेरी सिंपल। यही हुआ। युद्ध वाले दिन अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया और युधिष्ठिर से घोष करवाया गया। घोष का मतलब बहुत अच्छे से एक कि भाई आप है ना बहुत जोर से बोलना कि अश्वत्थामा मारा गया। तो बोला युधिष्ठिर ने, अश्वत्थामा तो गत्वा इति नरो वा कुंजरो वा। तो अश्वत्थामा तो गता तो बड़े बड़े अक्षरों में बोला, बहुत जोर से बोला। लास्ट में सब टाइटल में धीरे से बोला कि नर था या हाथी पता नहीं। ठीक है, क्योंकि अब भाई धर्मराज है तो सत्य तो बोलना पड़ेगा, लेकिन द्रोणाचार्य को भी डाउन करना है, तो इसलिए क्या था कि ये भी बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया। एग्जैक्टली दिस स्टोरी सिग्निफाइज इन टुडेज एरा रिलेटेड टू कोविड। क्या है? WHO ने बड़े बड़े अक्षरों में कहा कोविड-19 इज अ ग्लोबल पेंडेमिक, अश्वत्थामा तो गत्वा। बड़े बड़े अक्षरों में जो कोविड-19 है वो एक ग्लोबल पेंडेमिक है। बात बिल्कुल ठीक है, ग्लोबल पेंडेमिक की समझ में आई। लेकिन जो सबटाइटल में नर था या हाथी, इसी तरह से उन्होंने सबटाइटल में एक चीज कह दी कि 95 से 97% पेशेंट तो अपने आप ठीक हो जाते हैं बिना दवाई के। अब यहाँ पर हम सभी कौरवों ने क्या सुना, इंक्लूडिंग द्रोणाचार्य, हमको क्या लगा कि ग्लोबल पेंडेमिक है बस। अब हमको डे 1 पे बुखार आए तो बुखार आते ही सबसे पहले भाग के क्या करना है? बिस्तर पकड़ना है जिस पे ऑक्सीजन हो, जिस पे हमको सारी सुविधाएं मिल जाएं, आईसीयू मिल जाए, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर हमारा ही तो नहीं कहीं मरने वाला, जबकि रियलिटी ये नहीं है। मैं कोई एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, अभी अपन बिल्कुल डेटा के साथ बात करेंगे। WHO की साइट पे बकायदा ये चीज मेंशन्ड है कि 80% 85% पेशेंट्स आर माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक, यानी 85% मरीज को बहुत कम लक्षण होते हैं। क्या लक्षण हो सकता है? हल्का बुखार हो सकता है, नाक में गंध का अभाव हो सकता है, स्वाद का अभाव हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। तो 85% पेशेंट्स क्या है? माइल्डली एसिम्प्टोमेटिक। 10% पेशेंट्स क्या है? मॉडरेटली सिम्प्टोमेटिक। मॉडरेट का अर्थ होता है माइल्ड से थोड़ा ज्यादा, जिनका सैचुरेशन थोड़ा घट बढ़ सकता है, बुखार थोड़े ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है, जो थोड़ा बहुत बेड रिडन हो सकते हैं। उन लोगों को फिजिशियन केयर नीड है, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। और बचे हुए 5% लोग जिनको हो सकता है अस्पताल में ऑक्सीजन की नीड हो या ट्रीटमेंट की केयर हो, उनमें से भी 3.4% मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन बेड या आईसीयू चाहिए। अब सोचो, केवल 3% मरीजों को आवश्यकता है। और वर्तमान में क्या हो रहा है, अगर आप किसी भी ग्रुप में देखेंगे, जैसे अभी कोविड सेवा ग्रुप या और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में मेरे मरीज को तुरंत ऑक्सीजन का आवश्यकता है, मेरे मरीज को तुरंत आईसीयू का आवश्यकता है। ये आईसीयू की आवश्यकता बताने वाला कौन? बताने वाला सेल्फ। मैं कह रहा हूं ना मेरे मरीज को आवश्यकता है, मतलब ये वही वाली बात हुई कि हमने टेक्निकल एक्सपर्टीज से तो पूछा नहीं, हमने जज कर लिया कि मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन 70% है, तो मेरे मरीज को सीधा आईसीयू में ले जाकर के मुझे लैंड अप करना है। तो ये वही वाली बात हुई भाई, अश्वत्थामा तो गत्वा नरो वा कुंजरो वा। तो हमने किस चीज पे ध्यान दिया कि ये तो ग्लोबल पेंडेमिक है, और ये ग्लोबल पेंडेमिक हमारे प्राण लेने के लिए आई है। बाकियों का तो पता नहीं, प्राण हमारे जाएंगे। एक दिन बुखार आया और दूसरे दिन प्राण निकल जाते हैं, भाग के जाते हैं कहाँ? RT-PCR कराएंगे। और तीसरे दिन भाग के कहाँ जाएंगे? CT स्कैन कराएंगे। और चौथे पांचवें दिन तो रिपीट CT बहुत जरूरी है भाई, पता तो लगे बीमारी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है।
तो इन बेवकूफियों का अंत नहीं है। ये मेरी नजर में सीधी सीधी सी बेवकूफियां है। क्या? सपोज आपने आरटीपीसीआर करा लिया, चलो भाई, अब आरटीपीसीआर कराने के बाद अगर नेगेटिव आया और या पॉजिटिव आया तो आपके इलाज में कोई परिवर्तन हो जाएगा क्या? आपके इलाज में जो कोई दवा दी जा रही है आपको, बुखार की दवा या एंटीबायोटिक या कुछ भी जो आपको दिया जा रहा है, उसका इस रिपोर्ट से क्या संबंध है? मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। सपोज भाई हमारे सामने इतने लोग बैठे, किसी का अचानक से है ना एक दिन बुखार आया, अभी खाली दूसरे दिन भी नहीं, हम तो इतने तीव्र और व्यग्र हैं कि बस आज बुखार आया तो हो सकता है कल तक प्राण छिन जाएंगे, तो उससे पहले ही सारी जांचें करा लो। तो क्या करना है? सबसे पहले भाग के जाएंगे आरटीपीसीआर। अगर नेगेटिव आ गया तो बड़ा डाउट, यार सिम्टम तो सारे कोविड के, साला जांच नेगेटिव कैसे आया, ये बड़ा टेंशन। और डॉक्टर ने मेरे को इतनी सारी दवाएं क्यों दे दी, ये दूसरा बड़ा टेंशन। और गलती से जांच पॉजिटिव आ गया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, तो सबसे पहला काम क्या? अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखना है डॉक्टर कौन कौन है। सबसे पहले डॉक्टर्स को ढूंढना, अच्छा ये है, इससे बहुत दिन हो गए बात किए हुए, डॉक्टर साहब मेरा सैचुरेशन 80 आ गया है, अब मैं परेशान हूँ, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, सीटी भी करा लिया है, अब क्या करूं? क्या करोगे भाई? क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारे बस में जब कुछ नहीं है तो भागना बंद करो, सबसे पहला काम। अच्छा, एक और छोटी सी स्टोरी है इसी के साथ। महाराजा शुद्धोधन का नाम सुना है? गौतम बुद्ध के पिता। महाराजा शुद्धोधन के यहाँ गौतम बुद्ध हुए तो गौतम बुद्ध को घर में ही बंद रखा गया ताकि वो बाहर की दुनिया नहीं देखें, क्योंकि महाराजा शुद्धोधन को एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपका बेटा अगर बाहर गया और दुनिया से एक्सपोज हुआ तो हो सकता है आपका बेटा वापस घर ही ना आए और सत्य की खोज में निकल जाए। हुआ यही, एक दिन आखेट के लिए निकले गौतम बुद्ध, और जैसे ही आखेट के लिए निकले तो सबसे पहला उनसे एक जो व्यक्ति टकराया वो था एक बीमार, एक बहुत ही बीमार। तो उन्होंने अपने जो रथ चलाने वाला था उससे पूछा, सारथी से, भाई ये कौन है, ऐसे कैसे लड़खड़ा के चल रहा है? तो सारथी ने कहा कि भाई ये तो बीमार आदमी है और ये बीमारी होती है। अच्छा, गौतम बुद्ध ने कभी बीमारी देखी नहीं थी, बीमारी के बारे में जानते भी नहीं थे, उनको लगा अच्छा इतना कष्ट होता है क्या काया में। थोड़ा सा आगे गए तो एक वृद्ध मिला, तो सारथी से दूसरा सवाल पूछा, भाई ये कौन है? तो सारथी ने कहा ये बुढ़ापा है, आपको भी एक दिन ऐसे ही बूढ़ा होने वाले हो आप भी, अभी भले ही कितने भी, इफ यू आर यंग बट स्टिल धीरे धीरे समय के साथ आप भी ऐसे ही होने वाले हो। गौतम बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा मैं इतना सुंदर दिखने वाला नौजवान युवक जो राजा की कुर्सी पे आज बैठा हूं, सब कुछ है मेरे पास, मैं ऐसा कैसे हो जाऊंगा? आगे गए तो एक शव यात्रा जा रही थी, उस शव यात्रा को देख करके और गौतम बुद्ध ने फिर सारथी से पूछा ये क्या है? तो सारथी ने बोला ये मृत्यु है, ये भी एक दिन होने ही वाली है। अब आप सोचो, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये तीन चीजें हैं, और इस वर्तमान में इन तीन चीज के अलावा क्या है जो आप देख रहे हो? और आप किन तीन चीजों से भाग रहे हो? इन्हीं तीन चीजों से भाग रहे हो। पहला भाग रहे हो बीमारी से, जो इनएविटेबल है, अगर होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये, हम उस बीमारी से भाग रहे हैं जिसके लिए ऑलरेडी ये मेंशन्ड है कि उसमें कुछ नहीं करना है, भाग करके इलाज लेने जाओगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि मृत्यु का द्वार खटखटा लोगे। इससे बढ़िया है घर में रहो, आराम से रहो, तबीयत से रहो, तसल्ली से रहो, तो ठीक रहोगे। दूसरा, बुढ़ापा, वन फाइन डे वी ऑल आर गेटिंग दिस थिंग, होने ही वाले हैं। और तीसरा, मृत्यु, डेथ इज इनएविटेबल। ऐसा कोई है जो क्लेम कर रहा है यहाँ पर कि मैं 1000 साल के लिए धरती पे चिपका हुआ हूं, मैं कम से कम 1000 साल तो नहीं मरने वाला? कोई है ऐसा यहाँ पर? अब आप कहोगे अरे डॉक्टर साहब 1000 साल की बात नहीं है, अभी तो इस महामारी की बात करो। तो इस महामारी की बात करते हैं अपन, है ना, चलो 1000 साल को हटा देते हैं अपने सिनेरियो से और इस महामारी की बात करते हैं। इस महामारी से बात करने से पहले कुछ आपको डेटा शीट बताते हैं। डेटा, या आप लोग में से ज्यादातर नौकरी करने वाले होंगे, कुछ पढ़े लिखे होंगे, जो इतना तो समझते होंगे कि कुछ गणित के मैथमेटिकल डेटा जो होते हैं वो हमको अनुमान लगाने के लिए कुछ एक रास्ता दिखाते हैं। जैसे हर साल जुलाई अगस्त में बारिश आती है तो मौसम विभाग वाले इस डेटा को कलेक्ट करते हैं इस चीज को जानने के लिए कि भाई इस साल बारिश कब आएगी। तो हम कुछ डेटा की बात करते हैं ताकि हम इस चीज को जान सकें कि सत्य क्या है और सत्य के पीछे मिथ्या क्या है। इफ यू डोंट नो द ट्रुथ देन हम उस सत्य को जाने बिना सिवाय एक अंधेरी दौड़ में भागने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पहला,
भारत में 2020 में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरने वालों की संख्या थी 4.77 मिलियन। चाहे तो आप एक कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब मेरे डेटा नहीं है, ये मैंने इस सत्य को उजागर करने के लिए डेटा को गूगल से कलेक्ट किया, सीडीसी की साइट से कलेक्ट किया, और बहुत सारे जो IHMR और बहुत सारे ऐसे जो साइट्स हैं जिन पे आपको डेटा मिल सकते हैं। भारत में 2020 में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरने वालों की संख्या है 4.7 मिलियन, यानी लगभग 47 लाख लोग। ठीक है। और भारत में डायबिटीज से मरने वालों की संख्या है 2.54 मिलियन। 2.54 मिलियन का अर्थ हुआ लगभग 25.5 लाख लोग डायबिटीज से मर गए, 47.5 लोग कार्डियक डिजीज से मर गए, और सबसे कमाल बात, लगभग 1.39 लाख लोगों ने भारत में सुसाइड किया। यानी लगभग 1.5 लाख लोग जो उम्र में 16 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के थे, 1.5 लाख लोगों ने सुसाइड कर लिया। समझ में आ गया इतनी बात? उसके अलावा 1.5 लाख लोग सड़क पर एक्सीडेंट और दुर्घटना में मारे गए, और 4.5 लाख के करीबन लोग सफरर रहे रोड साइड एक्सीडेंट से। ये डेटा आपको क्लियर आ गया? चलिए अब मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं जो बिल्कुल लेटेस्ट है, रीसेंट है। अगर आपके पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आपको क्या करना है, खाली अपने उस मोबाइल या लैपटॉप में गूगल में एक लाइन डालनी है, COVID, कोविड। तो जो चीज निकल के आएगी वो सामने है राजस्थान। राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 8.22 लैक्स, लगभग 8.25 लाख। रिकवर्ड हो गए लगभग 6 लाख, और मृत्यु को प्राप्त हुए 6,317। भारत की बात करते हैं, 2.5 करोड़ एक्टिव टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, रिकवर्ड हुए हैं 2.01 करोड़, मतलब 2.25 करोड़ अगर इन्फेक्टेड है, 2.5 करोड़ इन्फेक्टेड है, तो लगभग 2 करोड़ तो ठीक हो चुके, और डेथ हुई है 2.62 लाख। वापस से इस डेटा को रिकॉर्ड करिए, 2.62 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। अब बताइए, कोविड ज्यादा घातक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज घातक है, डायबिटीज घातक है, या सुसाइड घातक है? तो फिर हम क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमने अश्वत्थामा हतोगत्वा को ध्यान दिया। अश्वत्थामा मारा गया और हम सबके भीतर का द्रोणाचार्य टूट गया, और हम सब क्या करने लगे? डे 1 पे बुखार आया, डे 2 पे RT-PCR हुआ, डे 3 पे CT स्कैन हुआ, डे 4 तक डी डायमर, LDH, सीरम फेरेटिन सारी जांचें हो गई, और डे 5 पर हम सीधे अस्पताल की शरण में शरणागत हो गए, और किसी डरे हुए चिकित्सक के सामने डरे हुए मरीज के द्वारा स्टीरॉइड्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल, फला धिका, प्लाज्मा, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, और ये सब चालू हो गया। अब कितना बड़ा अजीब लगेगा ना, अगर आपको ये कोई कहे कि एक जुकाम जैसी बीमारी को हम किससे ठीक कर रहे हैं? एंटीवायरल, एंटीफंगल, स्टीरॉइड। तो भाई अगर आप ये सब करेंगे तो आप ही कष्ट में हैं, कोई दूसरा कष्ट में नहीं। अब आप कहेंगे तो फिर डॉक्टर साहब इतनी जो मौतें हो रही हैं अस्पताल में, उसका क्या कारण है? एक, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो क्या होता है? वो शहर की तरफ दौड़ लगाता है। एग्जैक्टली भयाग्रस्त व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? एक भयभीत व्यक्ति सबसे पहले दौड़ के जाएगा कहाँ? अस्पताल। अब अस्पताल तो पहुंच गए, अस्पताल में क्या है? अस्पताल में बेड है लिमिटेड। भारत एक विकासशील देश है। आप मेरी इस पूरी चीज को समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सारा जो दिख रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप कारण जानेंगे तो कम से कम आप भागना बंद करेंगे। भारत एक विकासशील देश है, और इस विकासशील देश में 3.5% बेड नहीं है। भाई राजस्थान की जनसंख्या कितनी? 7.5 करोड़। जयपुर की जनसंख्या कितनी? लगभग 25 लाख। लगभग 25 लाख जनसंख्या में आपको कितने बिस्तर चाहिए? अगर मैं 3-3.5% के हिसाब से निकालूं तो 7.5 से 8% बिस्तर चाहिए, 7.5 से 8,000 बिस्तर चाहिए। क्या जयपुर के अस्पतालों में 7.5 से 8,000 बिस्तर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इतने बीमार कभी हुए नहीं और कभी आवश्यकता पड़ी नहीं। वी नेवर नो, हमको पता ही नहीं था ऐसा कभी कुछ हो जाने वाला है। अच्छा, नहीं हो जाने वाला है, इसलिए भारतीय चिकित्सा तंत्र की हालत क्या थी? बहुत ज्यादा सुधरी हुई नहीं थी।
अच्छा, खाली चिकित्सा तंत्र की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा। अगर हम कंप्लीट ओवरऑल बात करें तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में और आज चल रहा है 2021, तो भारत के 70-75 साल की आजादी के बाद भी अगर एक कुपोषित बच्चे से आप ये उम्मीद करोगे कि वो सलमान खान की तरह बॉडी दिखाए और पहलवान की तरह बिल्कुल अखाड़े में मुस्तैदी से लड़ ले, कैसे संभव है? हम एक कुपोषित बच्चे से उम्मीद लगा रहे हैं कि ये अखाड़े में बिल्कुल रेसलर के जैसे सबको हरा के आ जाए। और ये कुपोषित बच्चा कौन है? हमारा सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है। अब इस कुपोषित बच्चे के सामने पहुंच गया साहब पहलवान के जैसे एक महामारी की फॉर्म में कोई भी एक छोटी मोटी बीमारी, अब आप कह रहे हो कि नहीं भाई अब तू तो इसे लड़के दिखा। तो यहाँ पे जो भी दुर्घटना और घटना घट रही है के पीछे साधारण सा कारण ये है कि हम संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। संसाधन हैं, पूरे हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? पिछले साल जब ये बीमारी आई थी तो हम किन चीजों से जूझे थे? अगर आप लोगों को याद हो तो मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट, है ना? अगर आप लोगों को याद हो तो क्या नहीं था हम लोगों के पास में? मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर्स नहीं थे, पीपीई किट नहीं थे और उन सारी चीजों की कालाबाजारी चल रही थी। और अगर आज की बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, एट प्रेजेंट मोमेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। अगर एम्फोटेरिसिन भी थी तो उसकी कालाबाजारी हो गई, रेमडेसिविर भी अथाह थी पर उसकी भी कालाबाजारी हो गई। तो हर चीज की कालाबाजारी क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे खून में ये चीज शामिल है। भारत में जब 1947 के आसपास अकाल पड़ता था तो क्या होता था? धान, दलहन, दालें, उनकी कालाबाजारी हो जाती थी अकाल के वक्त। धान, दलहन यानी दालें, उन सब की कालाबाजारी हो जाती थी। अब फॉर्चुनेटली हमारे पास कम से कम खाने पीने के सामान तो अथाह हो गए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए उसकी कालाबाजारी अब नहीं होती। बट स्टिल दवाओं की कालाबाजारी होने लग गई। तो ये यहाँ पर कोई, अगर आपको लगता है कि चाइना जैसे किसी देश ने षड्यंत्र किया है और ये बहुत गंदी महामारी है, देखो कितने लोग मर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये हमारे ही कारण से है। सब कुछ जो दिखाई दे रहा है हमारे भीतर कहीं ना कहीं वो अभी भी दानवत्व मौजूद है, जो हम अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे हैं लोगों को। तो इसमें कोई दोषी नहीं है। दोषारोपण करने से बेहतर है हम इसमें क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, वो तो सुधरता रहेगा जैसे सुधरना है। हम यहाँ डिस्कस ये करेंगे कि इस बीमारी से या अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, वो आपको एक एग्जाम्पल दिया सारे डेटाज के साथ में। आप एक कल्पना करो, 7 करोड़ के जनसंख्या वाले इस राज्य में अगर 6,000 मृत्यु हुई है या 6,500 मृत्यु हुई है तो वो कितना परसेंट होगा? इसका क्या परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे आप? किसी बीमारी की भयावहता को नापने का एक क्राइटेरिया होता है, टेक्निकल टर्म है, उसे हम कहते हैं केस फैटेलिटी रेट, यानी बीमारी की भयावहता को नापने का पैमाना। और वो कैसे नापते हैं? तो जितने मर गए उसमें अगर हम संक्रमितों की संख्या का भाग लगाएं तो उससे निकल के आता है केस फैटेलिटी रेट। जैसे अगर मैं ये बात करता हूं, राजस्थान में लगभग 8.2 लाख केसेस हैं, जिनमें से मृत्यु हुई है 6.3 लाख की, सॉरी 6,000 की। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, ये होगा केस फैटेलिटी रेट फॉर राजस्थान। 6,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, क्या हुआ? ये संख्या कितना आएगा? 0.00 समथिंग कुछ। इसका क्या मतलब हुआ? लाख में से कोई एक व्यक्ति मरता है जो संक्रमित, 1 लाख में से कोई 1-2 व्यक्ति मरते हैं। तो क्या आप ही वो दुर्भाग्यशाली हैं क्या जो उन लाख संक्रमित में से मरने वाले हैं? तो इतनी हाय तौबा मचा रखी है, भाग भाग के भाग भाग के भाग भाग के। सैचुरेशन 70 हो गया, भागो। सैचुरेशन 80 हो गया, भागो। अभी भाग के सीटी स्कैन कराओ, अभी भाग के आरटीपीसीआर कराओ, अभी भाग के डी डाइमर देखना है मुझे। आप में से कितने लोग हैं जिनको फुल फॉर्म पता है डी डाइमर की, जो ये जानते हैं डी डाइमर क्या होता है, या सीरम फेरेटिन क्या होता है, या एलडीएच क्या होता है, या सीपीके क्या होता है? जब हम जानते नहीं तो एक अनजान भय से भागना कहां तक उचित है? अनजान भय से भागने के कारण क्या होता है? संसाधनों का गलत इस्तेमाल। क्योंकि देखो, एक ने कैलकुलेट करके बता दिया 0.75%
जो भी हैं, मैं तो देखो इसलिए कैलकुलेट नहीं करता हूं क्योंकि मुझे ये पता है 1% से अगर कोई बीमारी का केस फैटेलिटी रेट है तो हम उसे बीमारी नहीं मानते, मतलब मैं तो नहीं मानता हूं। आप लोगों को मानना है तो आप उसे बीमारी मानिए, बीमारी से तकलीफ में आइए, अपने आप को परेशान कीजिए, और परेशान अपने आप को तो कीजिए, अपने घर वालों को भी कीजिए, और ऐसा हो रहा है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, वर्तमान में कोविड फिजिकल इलनेस से ज्यादा मेंटल इलनेस हो चुका है, मानसिक बीमारी हो चुका है कोविड। लोग शारीरिक रूप से परेशान नहीं है, लेकिन लोग मानसिक रूप से परेशान होकर के भाग रहे हैं इधर उधर। आप देख लो, भले किसी भी जो भी लोग हेल्पलाइन में अभी आज के टाइम पे जुड़े हैं, जो भी लोग इस दुनिया में हेल्प कर रहे हैं, वो उस ग्रुप में क्या देखते हैं। रात को कल मेरे पास 2:30 बजे एक फोन आया कि मेरा पेशेंट का सैचुरेशन ये है, 70% हो गया है। मतलब पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अनपढ़ व्यक्ति तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा, उसको तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा। आधा पढ़ा लिखा व्यक्ति और आधा नॉलेज वाला व्यक्ति ज्यादा डरता है। वो मेरे को फोन करके बोलते, डॉक्टर साहब मेरा सैचुरेशन 70% हो गया। अगर इसी ग्रुप में सुन रहे होंगे तो उनको पता लग जाएगा 70% हो गया, मेरे को अभी का भी ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को आईसीयू में बेड दिलाओ एसएमएस में। मैंने कहा एक बार तसल्ली रखो, आप थोड़ा सा उस जो आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया है उसका सेल बदलो, दोबारा उसको लगाओ और फिर रीडिंग ले। उन्होंने सेल बदला, दोबारा रीडिंग ला, अरे डॉक्टर साहब मैं अभी भी सैचुरेट। मैंने कहा देखो ऐसा है, वहां पर एक चीज और नोट करो, पल्स क्या है और सैचुरेशन क्या है। तब उनका दिमाग क्लियर हुआ कि अरे मेरा तो सैचुरेशन 98 है, मेरा पल्स रेट 70 है ना ऐसा। तो भाई जब तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है तो एक मशीन का सेल खराब नहीं हो सकता है क्या। हम मशीन पे रिलाई कर रहे हैं, हम जांच पे रिलाई कर रहे हैं, लेकिन हम किस पे रिलाई नहीं कर रहे, हमारे इस इम्यून सिस्टम पे रिलाई नहीं कर रहे। हम इस चीज पे बिलीव नहीं कर रहे कि हमारे शरीर के भीतर एक ताकत है जो इस बीमारी से लड़ सकती है। और ये ताकत कब टूटती है, जब हम सबसे पहले कहीं ना कहीं फियर में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, भय या चिंता में होते हैं, तो ये ताकत टूट जाती है। इस भय और चिंता से अगर आप निजात पालेंगे तो मेरी बात का यकीन मानिए, अगर आपका सैचुरेशन 70% भी आ चुका है तो आप घर में अपने पलंग पर आराम से बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे, बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी एंटीवायरल के, बिना किसी दवाई के हो जाएंगे। मेरी बात का यकीन मानिए। मेरी बात का यकीन नहीं करते हैं तो WHO की बात का यकीन कीजिए, जिसने ऑलरेडी आपको ये समझा दिया कि ग्लोबल पेंडेमिक है। एक बात तो सुन ली कि भैया पेंडेमिक है, उसके बाकी की बात भी तो सुनो। WHO ने रिसेंट रिसर्चेस में कह दिया, देयर इज नो रोल ऑफ रेमडेसिविर, देयर इज नो रोल ऑफ प्लाज्मा, देयर इज नो रोल ऑफ अदर ड्रग्स इवन। जब इनका रोल नहीं है तो फिर हम भाग भाग के क्यों रेमडेसिविर लेके आते हैं, चूंकि एक किसी चिकित्सक ने लिख दिया कि भाई लेके आओ। मेरे पास पहले शुरुआत में फोन आए रेमडेसिविर के लिए, तो एक वीडियो बना के डाला मैंने एज ए मैसेज सबके लिए। रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है, फॉर्चुनेटली ये प्रूव भी हो गया, फॉर्चुनेटली ये प्रूव भी हो गया कि रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। और मेरी बात को याद रखिए, आज ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सारा सेशन, कुछ महीने बाद जो मैं अभी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ यही रिजल्ट निकल के आने वाले हैं कि भैया कोविड वोविड हो गया, अब अपने अपने सब काम करो, मस्त रहो, ये ऐसी बीमारियां आती और जाती रहेंगी। न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया ठीक भी होता है, लेकिन अगर आप भयग्रस्त रहेंगे तो ये न्यूमोनिया बढ़ जाएगा। आज ही मेरे साथ में एक जुड़े हुए थे जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग के डिवोटी है, तो मैं उनको समझा रहा था ये बीमारी क्या है, इसको अगर और थोड़ा सा समझें। आप आराम से सो रहे हैं बिल्कुल गहरी नींद में, अचानक से एक सांप आता है। अब अगर आपके शरीर में कोई हलचल नहीं है तो सांप आपके ऊपर से आराम से निकल जाएगा आपको बिना कुछ छेड़े। लेकिन अगर आपने वो डर के आप उठ गए और आपने उस सांप को की पूंछ पे पैर रख दिया तो ये सांप आपको काट के मानेगा। और अभी यही हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डर के सांप की पूंछ पे पैर रख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिला तो फेविपिराविर खा गए, फेविपिराविर नहीं मिला तो एजिथ्रोमाइसिन खा गए, वो नहीं मिला तो डॉक्सीसाइक्लिन खा गए, वो नहीं मिला तो आइवरमेक्टिन खा गए, वो नहीं मिला तो उसके बाद में किसी ने कहा मेड्रोल खा लो, खा लिया, किसी ने कहा डेक्सामेथासोन लगा लो, लगा लिया, किसी ने कहा कि भाई लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन लगाने, लगा लिया। तो भाई आपका ये शरीर को आपने डस्टबिन माना क्या, कि कूड़े का डब्बा है, जो बाजार में मिलता है उठा के लाऊं और इसमें डाल दूं, फिर देखते हैं कि जो इसमें से ठीक हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो बीमार तो पड़े ही है। फिर किसी डॉक्टर को फोन करेंगे कि जल्दी से जल्दी आईसीयू का बेड लगा दो मेरे लिए, मैं बस आ रहा हूँ, मेरी फ्लाइट घर से टेक ऑफ कर चुकी है, सीधा आपके बेड पे लैंड करेगा।
क्या मूर्खता है, मूर्खता की पराकाष्ठा है। इस मूर्खता की पराकाष्ठा में एक छोटा सा ऐड करता हूं मैं, एक जोक आया था उस पे भी मैंने वीडियो बनाया, सुनना जरा गौर से सुनना, हम सभी की वही हालत है। डॉक्टर साहब, मैं कोरोना की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा हूं। पहला, योग, वॉक, नींबू पानी, हल्दी वाला दूध, च्यवनप्राश, अंकुरित अनाज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, मामेरा बादाम, काबुली अंजीर, अरबी खजूर, विलायती खुरमानी, अफगानी खारक, देशी मुनक्का, हर्बल काढ़ा, मुंह में लौंग, काली मिर्च, नाक में तेल, हल्दी और नमक के गरारे, अजवाइन की भाप, दिन भर गर्म पानी पीता रहता हूँ। पतंजलि की तुलसी की गोलियां, गिलोय की गोलियां, नीम की गोलियां, होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बो हर महीने 5 दिन, कैम्फर 1 mg की गोलियां 5 दिन, अंग्रेजी दवाई में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एजिथ्राल और आइवरमेक्टिन, ये तो खा चुका हूं। इसके अलावा मुंह पे मास्क बांध रहा हूं, सूती साफी भी गले में डाल ली है, सैनिटाइजर रोज उपयोग में ले रहा हूं, दिन में 50 बार हाथ धो देता हूं, सामान की डिलीवरी से पेमेंट भी पेटीएम से कर रहा हूं, घर से निकल नहीं रहा, बाई हटा दी है, पार्टी दावत शादी भंडारे में खाना बंद कर दिया है, थाली ताली घंटा बजा चुका हूं, दीपक भी जलाया, कोरोना माता का व्रत भी रख लिया, एक बाबा से ताबीज भी लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पूरा है, पूरा करा लिया है, दोनों डोज वैक्सीन के भी लगवा लिए हैं। अब सुझाव दो मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कोई मेरे जैसा था, उसने बोला देख भाई अब तो तीर तेरे नाभि में ही लगना रह गया है, बाकी तो सब जाप्ता हो चुका है। तो भाई बात ये जोक की नहीं है, यहाँ पर विचारणीय है। देखो विचार क्या करना है कि हमने क्या 2020 से पहले ये सब प्रकरण किए थे क्या? नहीं, हम जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, ऐसे ही बीमारियां आएंगी और जाएंगी। मजबूत क्या रखना है? भगवान ने इनबिल्ट आपको 2 सिलेंडर दिए 6-6 लीटर के, एक फेफड़ा 6 लीटर का, दूसरा फेफड़ा 6 लीटर का है। आप में से कोई यहाँ जो बैठा है उसने मेरे को कोई बताएगा कि किसी को इनबिल्ट डिफिकल्टी है, कोई पैदाइशी जिसको फेफड़ा नहीं है? कोई भी आप में से, यहाँ पे अभी 432 लोग जुड़े हुए हैं। आई कैन चैलेंज ऑल ऑफ यू 432 मेंबर्स जिनके पास इनबिल्ट भगवान ने दे के भेजा 2 सिलेंडर, पक्का दे के भेजा। अच्छा, एटमॉस्फेयर में 21 से 25% ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। कोई पैसा लिया क्या ऊपर वाले ने हवा देते हुए कि भाई तू पैदा हो गया ला टोल टैक्स दे, मैं तेरे से ऑक्सीजन का पैसा लूंगा, तेरे को 2 सिलेंडर दिए उसका पैसा लूंगा? नहीं। अब क्या करना है? खाली ऑक्सीजन प्लांट लगाना है, और ऑक्सीजन प्लांट लगाने का तरीका भी बताया। बावजूद उसके अगर किसी मनुष्य ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया तो गलती किसकी है? मनुष्य की। और ऑक्सीजन प्लांट क्या है? ऑक्सीजन प्लांट है सिंपल प्राणायाम। सिंपल प्राणायाम। जिस भी व्यक्ति ने 2020 से पहले प्राणायाम किया है और जो ड्यूरिंग 2019 2020 रेगुलर प्राणायाम करते रहे हैं, आप में से 432 में से वो सारे एग्जाम्पल हैं, उनको कोविड ने छुआ भी नहीं है, और जिसको छुआ है तो वो चुपचाप से निकल गया है, बिना किसी स्टीरॉयड, बिना किसी लो मॉलिकुलर हेपारिन, बिना किसी सीटी स्कैन, बिना किसी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट और बिना किसी तामझाम के। तो हमको क्या करना था? ये 2 लंग्स, 2 सिलेंडर, इनका पूरा इस्तेमाल करना था ताकि हम एक्सटर्नल सिलेंडर पे डिपेंडेंट नहीं हो। इन 2 सिलेंडर का भरपूर उपयोग कैसे कर सकते थे? वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना है, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर संधारित करना है, प्राणायाम करना है। वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, सिंपल सा एग्जाम्पल है। पिछले साल इन्हीं दिनों में चूंकि कोविड स्टार्ट हो गया था और 1 मार्च से लॉकडाउन और ये सब चालू हो गया था, 23 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, 1 मार्च से ग्लोबल पेंडेमिक घोषित हो गया था। तो मई के आसपास हमने एक शुरू किया था, जैसे अभी मेरे बारे में कालानी जी ने आपको बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूं, तो हमने एक ग्रुप शुरू किया था डेली मॉर्निंग साधना। यानी तब से हमने कहा कि चलो भाई हम तो घर में सब करते ही हैं रोजाना, अब हम जूम के थ्रू करेंगे तो लोग भी उससे जुड़ेंगे और लाभान्वित होंगे और लोग उससे जुड़े। आज की तारीख में लगभग 65 लोग डेली मॉर्निंग साधना में साधना कर रहे हैं। 65 लोग, 1 साल हो गया अभी उसको साधना करते हुए।
1 साल के दौरान उनमें से किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को भी लो मोलिकुलर हेपेरिन का जरूरत नहीं पड़ा, किसी को स्टीरॉयड का जरूरत नहीं पड़ा, किसी को बुखार नहीं आया, किसी को छींक आई होगी तो आई होगी, नहीं तो वो भी नहीं आई। अब बताओ भाई, वो भी तो इसी युग में रह रहे हैं, या वो कोई अलग से चिड़ियाघर में रह रहे हैं और हम किसी मंगल ग्रह पे रह रहे हैं और हम किसी पृथ्वी पे रह रहे हैं। मतलब एक ही पृथ्वी, इसी पर रहने वाले लोग और बड़े आराम से रह रहे हैं। खाली उनका क्या है, रोज का 1 घंटा वो थोड़ा प्राणायाम करते हैं, कनिष्ठा प्राणायाम, थोड़ा भस्त्रिका करते हैं, अपना सुदर्शन क्रिया करते हैं और फिर अपना डेली रूटीन, रोजाना का काम। और उनमें से कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भाग रहा होगा रेमडेसिविर के लिए या प्लाज्मा के लिए या व्यवस्थाओं को दोष देता हुआ कि अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर साहब ये क्या कहते हो आप, अस्पतालों की हालत देखो। अरे तो अस्पतालों की हालत मैं ही देख रहा हूँ कि आप लोग नहीं देख रहे हैं? भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला देखने वाला हूं और आप में से कोई देखने वाला नहीं है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, अगर आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया हो तो आपको जरूर पता होगा, जिम्मेदारी इज इक्वल टू पावर, गैर जिम्मेदारी इज इक्वल टू शिकायतें। तो शिकायती व्यक्तित्व हर जगह मिलेंगे आपको। अस्पतालों में कचरा है, ऑक्सीजन नहीं है, ये अरे भाई हो गया। तुम अपनी खैर मनाओ कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो अपने इन 2 सिलेंडर्स के साथ में। एंजॉय योर लाइफ, अपना जीवन को आनंद में लो। और रही बात इस चीज की कि बीमारी, मृत्यु और बुढ़ापा, तो ये तो भैया इनएविटेबल है। वो चाहे 2020-21 में नहीं तो आगे आएंगे, पर आएंगे जरूर। आप उससे रुक नहीं सकते हो। अगर आपको लगे नहीं मैं तो पक्का तो आप बेवकूफ हो। यहाँ हम कोट करते हैं महर्षि पतंजलि को। पतंजलि ने 5 तरह के क्लेश बताए। पहला बताया अविद्या। अविद्या का अर्थ है बेवकूफी और मूर्खता। अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना। अनित्य मतलब जो परमानेंट नहीं है उसको परमानेंट मानना। जैसे ये बीमारी परमानेंट नहीं है लेकिन इसको परमानेंट मान के भाग रहे हैं, ये अविद्या यानी बेवकूफी है। ऐसी कई बीमारियां पास्ट में आई और चली गई, आगे भी आएंगी और जाएंगी। तो इसका मतलब अगर आप अपनी बीमारी को, अपने शरीर को और अपने बुढ़ापे को सत्य मानते हो तो आप अविद्या में हो। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत हैं आप। दूसरा है अविद्या के बाद अस्मिता। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, इसे कहते हैं अस्मिता। मैं ठीक रहूं, मेरा परिवार ठीक रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे बिस्तर मिल जाए, मेरे परिवार को बिस्तर मिल जाए, बाकी सब भाड़ में जाए, तो अगेन यू आर ऑन क्लेश। आप कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। बेसिकली हम वसुधैव कुटुंबकम है। अगर आपके पड़ोसी को भी दुख है तो आपको भी दुख होना ही चाहिए उतनी ही मात्रा में, तब आप सही जगह हैं। इसके साथ में जुड़े हैं राग और द्वेष, तीसरा और चौथा। राग का अर्थ है अटैचमेंट, चाहे आपको आपके शरीर के साथ अटैचमेंट हो, चाहे आपको किसी और के शरीर के साथ अटैचमेंट हो, अटैचमेंट राग है। और जब आप किसी से अटैच हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कहीं ना कहीं द्वेष है। यानी जब आपसे अटैच आपका प्रिय व्यक्ति मर गया तो आप द्वेषपूर्ण कृत्य करने लग गए, सिस्टम को गालियां देने लग गए और दुनिया में सबको गालियां देने लग गए। जब ये चारों क्लेश एक साथ आते हैं तो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट क्लेश आता है जिसका नाम है अभिनिवेश, यानी अज्ञात भय। और ये बीमारी सिवाय अज्ञात भय के कुछ और है नहीं। अच्छा, जो कुछ भी मैंने इस आधे घंटे में कहा है, इस आधे घंटे में कहे गए सारी बातों के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें विरोधाभास होगा, क्योंकि मैं अपने जीवन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कह रहा हूं और आप सभी लोगों के जीवन में यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहा है। मेरी सहानुभूति उन मरने वाले हर व्यक्ति से, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं गैर सहानुभूतिपूर्ण मेरा वक्तव्य, नहीं नहीं। सहानुभूति मेरी है उस हर व्यक्ति के साथ में जिसका परिवार या परिवारजन का कोई व्यक्ति जिसका इस दौरान मृत्यु हुई है। लेकिन ये बात यकीन जानिए कि मृत्यु तो 2020 से पहले भी होती थी। ऐसा नहीं था कि 2020 से पहले लोग मरते नहीं थे। बताया अभी आपको, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से 47 लाख लोग मर गए 2020 में। भले ही उनकी फाइल के ऊपर सिग्नेचर कोरोना का रहा हो, लेकिन उनका अंडरलाइन डिजीज क्या था? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। उनके अंडरलाइन डिजीज क्या थी? न्यूरोवैस्कुलर डिजीज, फेफड़े की बीमारी, दिल की बीमारी और तरह तरह की बीमारियां। तो यहाँ मेरा कंप्लीट होता है सेशन। अब हम लेंगे प्रश्न और प्रश्नों के साथ में लेंगे आप लोगों के जो डाउट्स हैं रिलेटेड दिस डिजीज। हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, कैसी क्या दवाई लें, क्या दवाई नहीं लें। देखो भाई, बिना दवाई के भी सारी चीजें ठीक हो रही हैं। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट हमेशा डॉक्टर्स में रहेगा, चाहे वो सर्जन्स हो चाहे वो फिजिशियन।
सर्जरी में भी 2 प्रकार के सर्जन मिलेंगे, जो इमीडिएट सर्जरी करते हैं या जो ऐसे होते हैं थोड़ा रुक के सर्जरी करते हैं। फिजिशियन में भी आपको 2 वैरायटी मिलेंगे, एक तो जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे ही मरीज को बुखार आया सब दे डालो, और दूसरे फिजिशियन होंगे जो कहेंगे नहीं थोड़ा सा रुक के एक बार देखते हैं, तकलीफ बढ़ेगी तब अपन शुरू करते हैं। तो इसलिए आप है ना सेकंड ओपिनियन, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 खेलना बंद करें। पर हाँ, बीमारी की भयावहता को जो मैं अपने बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में आपको समझा सकता था, मैंने समझाया। फिर भी अगर आपको प्रश्न है तो अब आपके प्रश्न लेंगे। कालानी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ कालानी जी पूछिए। रिक्वेस्ट तरुण कालानी। तरुण, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? As थैंक यू फॉर usual, दी अमेजिंग सेशन। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है इस सेशन से, एंड मैं अभी चैट्स देख रहा था तो पीपल रियली फाउंड इट वेरी इंफॉर्मेटिव। हम लोग जब तक लोग क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जो हैं सभी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जो है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हम उसको ले रहे हैं अभी इमीडिएटली। जैसे जब तक ये लोग क्वेश्चंस डाल रहे हैं, हमारा एक वीडियो था राजेश कलानी फाउंडेशन का, वो मैं चला देता हूँ, वो स्टार्टिंग में चला नहीं पाए थे हम, तो इट विल टेक 1 मिनट। इसमें कुछ राजेश कलानी फाउंडेशन के करे हुए प्रोग्राम्स, जैसे कि हर साल हम हार्ट कैम्प फ्री मेडिकल कैम्प मेदांता के साथ लगाते हैं, उसके कुछ छवियां हैं। लास्ट ईयर करे हुए वेबिनार्स, विभिन्न लोगों के साथ हमने वेबिनार्स करे, लोगों के कुछ रिएक्शंस, कुछ न्यूज़ कवरेज और अन्य चीज़ें जो हम इस फाउंडेशन के अंतर्गत करते रहते हैं। जैसे फ़िलहाल अभी हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक चला रहे हैं, जिसमें कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनके घर पे उपयोग के लिए दे रहे हैं, और उपयोग करने के बाद वो जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वो हमें वापस लौटाते हैं, और इससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा लिया है। अभी तक करीब 40-50 मरीजों को हम दे चुके हैं ये, और कंटिन्यू वो चल रहे हैं। आई थिंक उसमें ऑडियो नहीं चल पाया। नेवरदलेस हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। मतलब पहले तो कुछ सवाल मेरे पास ऑलरेडी हैं। जो आपने कहा कि रेमडेसिविर, टोसिलीजुमाब, कई सारे नाम अब तो हाउस होल्ड नेम बन गए हैं, हमने इससे पहले कभी सुने भी नहीं थे। तो आपने बोला कि ये WHO ने भी इसको अब क्लियर कर दिया है कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब आम आदमी को तो ये सपना आता नहीं है, ये बताते तो डॉक्टर्स ही हैं। तो क्या मतलब ऐसा, मतलब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखो इसके समझने का एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। सपोज आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लग रही है अच्छी खासी, और अब आपने खाना खाया, ठीक है, खाने में जितना आपका डाइट है उतना आपने खा लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई एक पान खा लेंगे तो मानेंगे भाई खाना पूरा हुआ, या कुछ लोग होते हैं नहीं एक है ना कम से कम रसगुल्ले का पीस तो होना ही चाहिए खाने में, तब हमको लगेगा खाना पूरा हुआ। लेकिन आपकी भूख तो मिट गई ना खाने से। तो क्या है, ये जितने भी ऑर्नामेंटल ड्रग्स हैं लाइक रेमडेसिविर हुआ या टोसिलीजुमाब हुआ या प्लाज्मा हुआ, दे आर अनप्रूवन। और हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल किया एक बार कि भाई अपने पास अनप्रूवन है, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस से हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, अगर फायदा होगा तो देखेंगे। अब कुछ एक में फायदा है, कुछ एक में फायदा नहीं है, लेकिन इसके लिए सबको ऐसा लिखना, वही वाली बात कि कुछ व्यक्तियों को पान खा के संतुष्टि मिलती है तो मिलती होगी, लेकिन सारे लोग तो अपना पेट भरने से काम चला रहे हैं ना। अब यहाँ ट्रीटमेंट में फिर केवल 3 चीजों का महत्वपूर्ण रोल है। मैं अपने सेशन में चीज कवर नहीं कर पाया, बता देता हूं आपको। केवल 3 चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स आर वैल्यूएबल ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट। पहला है ऑक्सीजन। अगर किसी को लग रहा है कि भाई अभी भी मेरा सैचुरेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है, या अभी भी फेफड़ों में बाइलेटरल न्यूमोनाइटिस है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशन में
ऑक्सीजन का रोल है, चाहे तो सिलेंडर से, चाहे कंसंट्रेटर से, या फिर हमारे साथ बैठ के प्राणायाम से। प्राणायाम से भी आपका सैचुरेशन 85% से सीधा 95% पहुंचता है। ठीक है। सेकंड रोल है स्टीरॉइड्स का। स्टीरॉइड्स बेसिकली फर्स्ट वीक में नहीं देना है, भिड़ते ही साहब अभी बुखार आया अगले दिन से सप्रेशन कर देता है, यानी आपके भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबाता है। दबाने से क्या होगा, जो एंटीबॉडी बन रही है यानी बीमारी से लड़ने की ताकत रही है। समझना इस चीज को, बीमारी भी कम हो रही है, ऐसा नहीं कि स्टीरॉइड का फायदा नहीं हो रहा, फायदा, लेकिन साथ ही साथ अब मैं शायद मेरा वीडियो हाँ एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद कुछ देर के लिए। एक मिनट, मैं आपको वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। ये आ गया। जी। तो स्टेरॉइड फर्स्ट वीक में बहुत ज्यादा फायदा नहीं करता है। उसका रोल है जब आपके सर से पानी निकल गया तब आप उसको शुरुआत कर सकते हो बीमारी को रोकने के लिए। इसी तरह से तीसरी चीज का रोल है लो मॉलिक्यूलर हेपारिन या ब्लड थिनर्स। वो क्या करते हैं ब्लड थिनर्स ये करते हैं कि आपके ब्लड में क्लॉटिंग वेरिएबिलिटी को थोड़ा सा कम करते हैं। नहीं तो क्या हो रहा है, इस बीमारी के कारण आपकी क्लॉटिंग जो है वो होने लगती है, शरीर में कहीं ना कहीं खून के थक्के बनने लगते हैं। पर मेरी बात को ये जरूर समझ लीजिए कि इसका ये मतलब नहीं हर व्यक्ति LMW खा ले, जबरदस्ती लो मॉलिक्यूलर हेपारिन लगा ले। आपके शरीर के भीतर ब्लड को रोकने की और थक्का बनने की दोनों क्षमताएं मौजूद हैं। इसी तरह से आपके शरीर के भीतर बीमारी से लड़ने की क्षमता भी मौजूद है। तो आप अपने शरीर पर यकीन करिए, दवाओं की जगह है। जब आपको सर से पानी निकलेगा तो ऑब्वियसली आपको दवा देनी पड़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं पहले सप्ताह में बुखार आया और बुखार आते ही आपने सारी दवाएं अपने भीतर ले ली। तो यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, दवाएं कब देनी है और उन दवाओं का जुडिशियस यूज क्या है। जुडिशियस यूज, इस चीज को जानना जरूरी है। जुडिशियस यूज का अर्थ होता है संसाधन का सही इस्तेमाल। अगर संसाधन का सही इस्तेमाल नहीं किया है तो गड़बड़ है। जैसे स्टीरॉइड कब शुरू करें, एग्जाम्पल, तो भाई अगर आपका सैचुरेशन 90 के ऊपर है, बुखार आपका धीरे धीरे ऑलरेडी टूट गया है, तो अभी आपको कोई स्टीरॉइड की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम करिए, मस्त रहिए। सैचुरेशन 90 के नीचे आने लगा है तो भी आप 1-2 दिन थोड़ा सा होल्ड करके देख सकते हैं कि अभी अपन उसको मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर आपको स्टीरॉइड शुरू करने की आवश्यकता है। व्हेन सैचुरेशंस फॉल बिलो 90, अब आप मॉडरेट डिजीज में आ गए हैं। मॉडरेट लेवल की डिजीज में आपको एक्टिव मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। माइल्ड डिजीज है, 90 के ऊपर तक का चल रहा है, तब तो कोई खास बात नहीं है, चलने दो। हालांकि जो कैटेगराइजेशन वो ये है 95 to 100 इज माइल्ड, 90 to 95 इज मॉडरेट, बिलो 90 इज सीवियर डिजीज। बट स्टिल अभी के सिनेरियो को देखते हुए जो मेरे सामने पेशेंट्स की क्लिनिकल पिक्चर आ रही है, मुझे लगता है 90 के ऊपर वाले भी आराम से ठीक हो रहे हैं बिना दवाओं के, बिना स्टीरॉइड्स के। जिनका सैचुरेशन 90 के ऊपर है वो भी बिना स्टीरॉइड के खाली प्राणायाम के माध्यम से ठीक होते पाए गए हैं। तो आप अपने आप पर यकीन जानिए और थोड़ा बहुत जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उन पर थोड़ा फोकस करिए, यू विल बी ऑल राइट। हाँ तरुण जी, और पूछिए। हाँ सर, तो एक क्वेश्चन और आ रहा है प्लाज्मा थेरेपी को लेके। लास्ट ईयर हम सब ने प्लाज्मा थेरेपी करी, काफ़ी पेशेंट्स ठीक भी हुए और गवर्नमेंट ने भी इसको प्रमोट किया। इनफैक्ट आज भी करीब करीब सारे सोशल एनजीओ प्लाज्मा थेरेपी की तरफ काम कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे थे। अब नहीं है वो लास्ट ईयर था और अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट आप देखोगे इस साल के अंत तक ये ऑब्सोलीट भी हो जाएगा। बेसिकली प्लाज्मा का रोल समझिए, प्लाज्मा का रोल ये होता है जो मरीज ठीक हुआ है तो हम ऐसा कल्पना करते हैं कि ठीक होने वाले मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज हैं, तो वो हम प्लाज्मा के थ्रू बने बनाए एंटीबॉडी किसी और के शरीर में चढ़ा दें।
तो शायद उसके एंटीबॉडी किसी के काम आ जाए, लेकिन 10 दिन के बाद तो शरीर में वायरस रहता ही नहीं है, तो आप प्लाज्मा दे किस लिए रहे हो? थ्योरेटिकली अगर कोई मेरे साथ यहाँ टेक्निकल पर्सन जुड़ा है, जो डॉक्टर है, जो मेडिकल फील्ड में चीज जानता है, उसको ये पता है कि भाई आफ्टर 10 डेज और 14 डेज वायरस बॉडी में रहता नहीं, केवल वायरस के निशान बॉडी में रहते हैं। निशान होता है बायलेटरल न्यूमोनाइटिस, निशान होते हैं फिजिकल सिम्टम्स। वो सिम्टम तो वायरस तो चला गया अभी शरीर से, अब तो आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है। अब न्यूमोनाइटिस के अंदर आपका प्लाज्मा कोई रोल नहीं करता है। प्लाज्मा का रोल तब है जब कहीं बॉडी में वायरस एक्टिवेटेड है और उस एक्टिवेटेड के लिए आपको लड़ने के लिए एंटीबॉडी चाहिए, या तो बने बनाए और या फिर प्लाज्मा के थ्रू। तो अब क्या है कि भाई देखो, जब गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, लोगों ने भी प्रमोट किया, अच्छा प्लाज्मा मिल जाए, जैसे खाना खाने के बाद आपको पान मिल जाए बुरा नहीं है, लेकिन पान नहीं मिले तो भी पेट तो भरा ना। तो मरीज को ठीक होने के लिए जीवन रक्षक नहीं है प्लाज्मा। देखो जीवन रक्षक दवा केवल 3 है, ऑक्सीजन, स्टीरॉयड और हेपेरिन। प्लाज्मा इज नॉट जीवन रक्षक, रेमडेसिविर इज नॉट जीवन रक्षक, टोसिलीजुमाब इज नॉट जीवन रक्षक। लेकिन अगर मिल जाते हैं तो बुरे नहीं है, लगा दो भाई, जब इतनी दवाएं लग गई तो ये 3 और लगा लो, बाकी ये जीवन बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए कम से कम आप ये तसल्ली अपने आप को दे सकते हैं कि आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। अगर किसी को प्लाज्मा नहीं मिला तो उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। किसी को अगर रेमडेसिविर नहीं मिला, भागते भागते थक चुका है और रेमडेसिविर के लिए अभी भी भाग रहा है, तो उससे अनुरोध है भागना बंद कर दो। आपके उस रेमडेसिविर से आपके मरीज की जान को कोई खतरा नहीं है, न बचने वाला है। जो जान बचाने की 3 चीजें हैं वो सारी अस्पताल में उपलब्ध है। ऑक्सीजन अवेलेबल है, जो कमी है वो आप इस महीने के अंत तक देखोगे एक्सेस में हो जाने वाली है, क्योंकि इंडिया में जिन चीजों की कमी आती है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा दानदाता और धर्मार्थ संस्थाएं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा सा काम करते हैं। जैसे कालानी ग्रुप ऑफ, जो भी अपन ने देखा, इन्होंने बहुत इसमें एडिशन किया है। तो ऐसी संस्थाएं हमेशा तत्पर रहती हैं जो भी कमी होता है उसको पूरा करने के लिए। तो जयपुर में बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट भी लगने वाले हैं, तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ जैसे पीपीई किट हुआ और मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, इनकी कमी नहीं रही, वैसे ही ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रहेगी अगले 1-2 महीने में। और एक खुशखबरी आपको दे देते हैं, साथ ही साथ धीरे धीरे इस बीमारी का प्लेट्यू एंड प्लेट्यू के बाद नाउ नंबर ऑफ केसेस आर ऑल्सो गोइंग डाउन। तो अब ये वापस से कहीं ना कहीं नियंत्रण की स्थिति में है। तो आप एक ये भी अपने आप को समझा सकते हैं कि नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हाँ तरुण जी। एक सवाल वैक्सीनेशन को लेके भी आ रहा है और आई थिंक इसमें काफ़ी क्लैरिटी वैसे तो लोगों को मिल चुकी है, बट फिर भी सवाल है तो उसको लेना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन में कौन सा वैक्सीनेशन बेटर है? कभी कोवैक्सीन आता है, कभी कोविशील्ड आता है, शॉर्टेजेस भी है इंडिया में, वो हम देख ही रहे हैं, और अभी स्पुतनिक भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो वैक्सीनेशन कौन सा बेटर है? और दो ही इलाज है, एक पहला सवाल है और है। सेल्फ इम्यून सिस्टम और दूसरा है वैक्सीनेशन। सेल्फ इम्यून सिस्टम पे तो अपने को भरोसा नहीं है, क्योंकि अपन ने हमेशा से कूड़ेदान माना है शरीर को, इसलिए भरोसा बचा नहीं। क्योंकि खाने पीने में भी जो चीजें मिलावटी हैं, और वैसे हमको खुद को नहीं पता कि हमारा शरीर कितना साथ दे रहा है। तो दूसरा जो है ना, वो है इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए वैक्सीन। वैक्सीन अभी भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों हैं। अब तीसरी स्पुतनिक और आ रही है बहुत जल्दी, और वो आ ही चुकी है और बहुत जल्दी आप देखोगे बाजार में अवेलेबल रहेगी। तो तीनों सेफ हैं, तीनों लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी 10 दिन बुखार आ सकता है। मैं यही लोगों को समझाता हूँ, जो लोग वैक्सीन लगा के आते हैं ना मेरे पास, डॉक्टर साहब बुखार तो अब भी आ रहा है, तो मैं यही कहता हूँ, जब पहले आ रहा था तब तो तुझे डर लग रहा था, अब वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आ रहा है तो अब तुम उसको कैजुअल ले रहे हो। नहीं ठीक है, वैक्सीन के बाद तो बुखार आ सकता है। तो भाई दोनों स्थितियों में वैक्सीन लग के बुखार आए चाहे इन्फेक्शन के साथ बुखार आए, बुखार किसे कहते हैं? बुखार का अर्थ है 100.3 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर बुखार होता है, 99 बुखार नहीं होता है। लोग फोन करके बोलते हैं सर मेरा 99.3 बुखार है, क्या करूं? 99.3 बुखार ही नहीं होता है, तेरा शरीर हल्का गर्म है, ठंडे पानी से ना ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो वैक्सीन सारी सेफ हैं। स्पुतनिक जो अभी रशिया से आने वाली, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका है मार्केटेड इन इंडिया एज ए कोविशील्ड, एंड थर्ड वन इज कोवैक्सीन, ऑल आर सेफ, तीनों लगवा सकते हैं। और तीनों के बीच में पहले गैप को लेके कंफ्यूजन था कि भाई 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उसमें जितना गैप रहता है उतना फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अच्छा
और बाकी इसके अल्टरनेट्स और अवेलेबल होने वाले हैं बहुत जल्दी, जैसे नेजल स्प्रे है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आयुर्वेद में एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं नास्य। नास्य एक शब्द है, उसका क्या अर्थ होता है? आप लोगों में से जिन्होंने ग्रामीण जीवन देखा है, शहरी जीवन देखा है तो मुझे पता नहीं उन लोगों का अनुभव है या नहीं, लेकिन गांव में घर के बड़े बूढ़े लोग जब भी घर से बाहर निकलते थे तो एक प्रकार जरूर करते थे, क्या गाय का घी नाक में लगाते थे या सरसों का तेल नाक में लगा के घर से निकलते थे। इससे आयुर्वेद में नास्य कहा गया है। जब भी कोई फैट सॉल्युबल चीज अगर आप अपनी सरफेस के ऊपर लगाते हैं तो वो बैक्टीरिया एंड वायरस एंड फंगस से प्रोटेक्टेड है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और एनी सॉर्ट ऑफ पैथोजन से वो सरफेस प्रोटेक्टेड है। तो हमको कौन सी सरफेस प्रोटेक्ट करनी है? सबसे पहले अपनी नाक, क्योंकि वायरस का एंट्री कौन सा है? नाक के थ्रू। तो आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, गाय का घी लगा सकते हैं, और सबसे अच्छा आता है आर्ट ऑफ लिविंग का अणु तेल, वो लगा सकते हैं। और आपको एक और अच्छी चीज बताएं, एक ड्रग आती है आयुर्वेदा की, कबासुर कुडिनिर। इट इज इक्वली एफिकेसी एज वैक्सीन। अगर कोई व्यक्ति प्रोफाइलेक्टिक कबासुर भी खा रहा है तो इट इज इक्वली इफेक्टिव। अब देखो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कबासुर खा के तो बुखार भी नहीं आता, लेकिन हम तो क्या है कि हम कबासुर नहीं खाएंगे जब तक कोई ऑथेंटिक नहीं बोले। हमने अरे भाई इतना वर्ल्ड लिटरेचर में आ गया कबासुर का, तो खाइए। कबासुर को अगर आप 2 मॉर्निंग और इवनिंग में खाते हैं एक एक गोली, और अगर उसको एज ए प्रोफाइलेक्टिक खा रहे हैं तो इट इज इक्वली इफेक्टिव देन वैक्सीन। वैक्सीन का एफिकेसी कितना है? 85%, 90%। तो इतना ही इफेक्टिव इसका आया है कबासुर का। अच्छा, दूसरा जो नेजल स्प्रे है या और दूसरी डीआरडीओ की जो ड्रग्स आई हैं अभी, वो आई हैं और आती रहेंगी। जब तक बीमारी रहती है तब तक उनके ट्रायल और रिसर्चेज ऑन गोइंग है। मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, अपने इम्यून सिस्टम पे काम करिए। ऐसी बीमारियां भी आती और जाती रहेंगी, ऐसी बीमारियां भी आती और जाती रहेंगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, आपका प्राण शक्ति ठीक है, तो आप इन बीमारियों से सहज तरीके से लड़ लेंगे, असहज नहीं होंगे कि खाट पकड़ लिया अभी भागो। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है ब्लैक फंगस के बारे में। अभी बहुत सारे नया टोटका निकल आया है, ब्लैक फंगस। अभी तक तो कोविड चल रहा था, अभी ब्लैक फंगस क्या है? तो देखो, ब्लैक फंगस बेसिकली कोई नई, जैसे कोविड भी नया नहीं है, कोरोना एक वायरस है जो सन 1920 में डिटेक्ट हुआ, 1950 में इवेल्युएट हुआ, 1960 में अल्मेडा नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया। नाम कोरोना क्यों पड़ा? कोरोना का अर्थ होता है क्राउन लाइक, तो इसका शेप है जस्ट लाइक अ क्राउन, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कोरोना। कोरोना को कॉमन कोल्ड वायरस नाम से जाना जाता था इस एपिडेमिक बीमारी से पहले। अच्छा, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, अरे कॉमन कोल्ड का वायरस इतना तबाही ला रहा है, चलो, अगर किसी कोई किराने का काम यहाँ करता हो और किराने की दुकान हो या मेडिकल स्टोर हो, तो पुराना डिटॉल का बोतल निकालो, 2017-18 का आउटडेटेड कोई डिटॉल का बोतल या कोई फिनाइल का बोतल, उस पे एक चीज लिखी हुई होगी बड़े बड़े अक्षरों में, इट किल्स कोरोना। देखो, है ना, इट किल्स कोरोना, तब से लिखा आ रहा है। लेकिन अभी क्या है, कोरोना को लोग जानने कब लगे? इस एपिडेमिक के बाद या पेंडेमिक के बाद। तो ब्लैक फंगस कोई नया नहीं है, ब्लैक फंगस पहले भी था और बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन पहले भी थे। होते किसमें है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्तियों में। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है? कि जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम है। अच्छा, किन में कम होती है? जो बुढ़ापे में रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम होता है। दूसरा, जो डायबिटिक हैं उनमें कम होता है। अच्छा, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें कैंडिडा इन्फेक्शन भी कॉमन है, नॉट ओनली म्यूकरमाइकोसिस, कैंडिडा भी कॉमन है, अदर फंगल इन्फेक्शन भी कॉमन है। तो यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर हमने स्टीरॉयड का जुडिशियस यूज नहीं किया। स्टीरॉयड को चिपकाते गए, खाते गए, बीमारी ठीक करने के लिए जैसे मर्जी पड़ी कूड़ेदान में डाल गए। अभी स्टीरॉयड ज्यादा खाने से क्या हो गया कि थोड़ा सा इम्यून सिस्टम कम हो गया। मैंने शुरुआत में यही कहा, पहले हफ्ते में स्टीरॉयड मत शुरू करो, पहले हफ्ते में दवाइयां मत दो। बुखार आता है, आने दो, थोड़ा उस बीमारी को देखो, अपने शरीर को देखो, जब तक लड़ रहा है लड़ो, उसके बाद आप काम करो उसके ऊपर। अब स्टीरॉयड दिया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुए, अब म्यूकरमाइकोसिस हो गया। तो म्यूकरमाइकोसिस का आपको एक चीज मैं बता दूं, पहला इलाज है एम्फोटेरिसिन बी, जो अभी फिर उसकी कालाबाजारी चालू हो गई है। एक डॉक्टर अगर कहता है नारियल पानी पियो,
तो सब्जी वाला नारियल पानी की कालाबाजारी करता है। डॉक्टर बोलता है नींबू खाओ, संतरे का रस पियो, तो नींबू संतरे महंगे हो जाते हैं। ऐसे ही बताया कि भाई ब्लैक फंगस में एम्फोटेरिसिन बी का रोल है, तो एम्फोटेरिसिन बी की कालाबाजारी शुरू हो गई। अभी मार्केट में एम्फोटेरिसिन भी नहीं है, बताओ। तो आपको मैं यहाँ पर चुपके से एक और दवा बताता हूँ जो ब्लैक फंगस में काम की है। लिख सकते हैं, टैबलेट आती है आइट्राकोनाजोल 200 मिलीग्राम की, मुंह से खाने वाली गोली है, खाइए। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं खाना है कि अभी खाने लग गए कि भाई परसों तरसों मेरा जब कोविड ठीक हो जाएगा तब मेरे को म्यूकर माइकोसिस होगा और फिर मैं पहले से ही उसको खाना शुरू कर दूं, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन दवाओं की कालाबाजारी है, जैसे रेमडेसिविर है, भाई एंटीवायरल हजारों उपलब्ध है बाजार में, और बहुत सारे हॉस्पिटलों में, जो अच्छे हॉस्पिटल है इंडिया में, अच्छे हॉस्पिटलों की तादाद कम नहीं है, उन लोगों ने अदर एंटीवायरल से भी ठीक किया है पेशेंट्स को। तो है ना, ये सब जो चल रहा है माहौल, इसके पीछे की थोड़ी सत्यता को जानिए कि नहीं भी मिला रेमडेसिविर तो भी आपका मरीज ठीक होगा, और नहीं भी मिला तो आपके पास में अदर एंटीवायरल ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर, तो हमको उन पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ब्लैक फंगस के बारे में, म्यूकर माइकोसिस है। म्यूकर माइकोसिस जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में होता है। कहाँ होता है? मुंह में हो सकता है, गले में हो सकता है, आंखों में हो सकता है और त्वचा पर हो सकता है। अगर आंख में हुआ तो आंख जाएगी, त्वचा पे हुआ तो त्वचा जाएगी, जहां फेफड़े में हुआ तो फेफड़े का हिस्सा एक खराब होता है और खांसी आती रहती है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, बस थोड़ा सा इतना काम करना है कि हमको अपने इम्यून सिस्टम पे काम करना है। वनस्पत ढेर सारी जो बाजार में दवाओं के बारे में सुन सुन के जो आप ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, उस सारे ऑब्सेशन को साइड में रख दीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स करिए, ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, मन को प्रसन्न रखिए और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को प्रसन्न रखिए। यही मैसेज है। बाकी दवाओं के ऊपर मैं और वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, देख लेना आराम से। हाँ तरुण जी। गलती तो डॉक्टर साहब हमारे से बहुत सारी हो गई है, और आई थिंक अब उसको करेक्ट करने के लिए मैं एक सवाल नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ कि कोविड के बाद रिकवरी के लिए लोग क्या कर सकते हैं। आई एम श्योर प्राणायाम यू हैड सजेस्टेड, आपने बताया भी प्राणायाम तो करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि कोविड के बाद, क्योंकि घर में काफी लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, क्वारंटीन चलता रहता है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि रिकवरी स्पीड अप हो जाए, 10x हो जाए? रिकवरी स्पीड अप के लिए द ओनली थिंग इज, देखो आपको आपके डॉक्टर ने कहना स्पायरोमीटर दिया होगा। स्पायरोमीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 3 गेंद होती है और कहा होगा इसमें फूंक मारते रहो तो फेफड़े की रिकवरी जल्दी होती है। अरे भाई, वो फूंक मारना भस्त्रिका प्राणायाम ही है। अगर मैं आपको मशीन देने की जगह कहूँ कि गहरी सांस लो और सांस छोड़ो, तो आपको क्या कष्ट है? करो ना भस्त्रिका, जल्दी रिकवरी होगी। अगर आपने पकड़ लिया ये रास्ता, तो जो आप महीने भर में रिकवर करने वाले हैं वो आप 5-7 दिन में रिकवर कर जाएंगे। तो द सिंपलेस्ट वे टू रिकवर इज जस्ट डू मैक्सिमम। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स है वो कहते हैं नहीं नहीं, प्राणायाम करने में ना फेफड़े में साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई जिस चीज को जानते नहीं उसके बारे में बोलना क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं, जब भी आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है तो शरीर को निढाल मत रखिए, एक्टिवेटेड रखिए। अगर आपका शरीर निढाल रहेगा बुखार नहीं टूटेगा, शरीर निढाल रहेगा तो बीमारी बढ़ेगी। तो शरीर को एक्टिवेटेड रखिए, जॉइंट रोटेशन करिए, गर्दन हिलाइए, थोड़ा घर पे डांस कर लीजिए म्यूजिक चला के, थोड़ा प्राणायाम करते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपकी कॉन्शियसनेस ताकत देती है बीमारी से लड़ने की, दवाई ताकत नहीं देती है आपको बीमारी से लड़ने की। आपने कभी सोचा क्या कि आपके भीतर क्या ऐसा है जो बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करता है? कुछ तो होगा ना अंदर ऐसा, या कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई ऐसा सेल्फ मैकेनिज्म ही नहीं है, बस अपने आप ही चल रहा है, दवा डाली और चल पड़ा, ऐसा तो नहीं है। भीतर एक कॉन्शियसनेस नाम की चीज है जो आपको लड़ने की ताकत देती है। आप उस कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करिए, उसमें नेगेटिव चीजें डालने की जगह पॉजिटिव चीजें डालिए और अपने मरीज को ठीक होते देखिए और खुद भी ठीक होइए। जहां तक बात है सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन, इन सारी चीजों की, तो इसमें है ना हिपोक्रेट होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप हो गए पॉजिटिव, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, आप थाली नीचे से सरका रहे हैं गेट के और फिर वो खाना खा के फिर आप प्लेट को सरका रहे हैं, इस सिंपली हिपोक्रेटिक थिंग्स हैं। कुछ नहीं होगा इससे। अगर घर में एक हो गया इनफैक्ट तो अब बारी बारी सबका नंबर आने ही वाला है। तो अब इसमें क्या करो, आराम से तबीयत से अपने उस मेंबर की सेवा करो। सेवा करने में सारे प्रिकॉशन ले, ग्लव पहन लो, मास्क पहन लो,
ज्यादा डर लगता है तो 2 मास्क पहन लो, सैनिटाइज करते रहो हाथ को, लेकिन उसकी सेवा करो, साथ में उसको पॉजिटिव चीज देते रहो कि भाई तू भी ठीक है, हम भी ठीक होंगे। मेरा मूल मंत्र बताता हूं मैं आपको, बाकी मुझे नहीं पता। आपके कभी भी कोई मरीज बीमार हो जाए घर परिवार पड़ोस अड़ोस में, तो उसके कान में जाके एक मंत्र बोलो और उसको 108 मनके की माला दो कि ये मंत्र तेरे को फेरते रहना है, और मेरे शब्दों को लिख लीजिए, वो बिना दवाई के ठीक होगा। और वो मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं है, लेकिन माला वही है। और फेरना क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये चतुरक्षी मंत्र कहलाता है और उसको वही जपना है बस। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, एंड सी द मैजिक। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं भयावहता के कारण कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उस भय को निकाल लीजिए, आप ठीक हैं बिल्कुल। पूछिए तरुण जी, 11:15 हो गए हैं। पॉजिटिव, बस लास्ट 2 सवाल है। वैसे आपने काफी सवाल ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, एक में 2 आंसर कर रहे हैं आप। पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में हमने बहुत सुना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि डॉक्टर मोहित खुद भी एक प्राणायाम वर्कशॉप चलाते हैं सिंस ही इज एन आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी, एंड इन्होंने हमसे शेयर किया था कि 60 to 70 लोग रोज इनके साथ सुबह वर्कशॉप करते हैं, और उनमें से एक भी आदमी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है, एंड एवरीबडी इज हेल्दी एंड डूइंग फाइन। तो आई थिंक यही एक अपने आप में है, क्योंकि ये हमारे को प्रोबेबिलिटी बता रही है। एक क्वेश्चन में, जैसे आपने कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल हम सुनते हैं बाहर के लिए, अब घर में हो रहा है, घर में कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए कि घर में आने के बाद बच सके? आपने बोला होगा, बट देयर मस्ट बी सम वे कि हम उससे बच सकें घर में आने के बाद भी। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोविड एयरबॉर्न है। अब लोग कहने लगे, जबकि कोई भी वायरस होता है वो एयरबॉर्न होता है, बहुत ज्यादातर जितने वायरसेस है दे आर एयरबॉर्न। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप अपने घर की स्वच्छता का, सैनिटेशन का, जैसे आप बॉडी का ध्यान रखते हैं वैसे ही घर की स्वच्छता का भी उतना ही ध्यान रखिए। अभी जैसे ना सरफेस सैनिटाइजर्स आ रहे हैं बाजार में, कुछ पहले भी आते थे लेकिन हम उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करते थे, पर अब करने लगे हैं। सरफेस सैनिटाइजर्स के द्वारा आप जहां आपका मरीज है, या जहां कोई एक मरीज को आपने 10 से 15 दिन रखा है, जब आप उसको बाहर लेके आते हैं मरीज को, आप उस पूरे कमरे को सरफेस सैनिटाइजर से सैनिटाइज करिए, रूम को सैनिटाइज कर सकते। अच्छा, अभी जैसे आपने देखा होगा कि नगर पालिका की गाड़ी घूमती है गली गली को सैनिटाइज करते हुए, है ना? वो सैनिटाइजेशन डिफरेंट है, वो सैनिटाइजेशन होता है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। लेकिन आप घर में अच्छी क्वालिटी का सॉल्यूशन ला सकते हैं जिसको सरफेस सैनिटाइजर कहते हैं। उसको क्या है, एक फोगिंग मशीन आती है, 3-1 हजार रुपए की मशीन मिल जाती है अमेजोन पे, आप मशीन मंगाए, उसमें क्वांटिटी होती है पीछे, है ना, बिल्कुल मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको, आराम से घर पे भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें थोड़ा सरफेस सैनिटाइजर डालिए, थोड़ा पानी डालिए और उस मशीन को चला दीजिए। 20 मिनट में आपका वो पूरा कमरा, या आप जहां भी उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, रूम को, घर को, वार्डरोब को या हॉल को, तो वो सारा सैनिटाइज हो जाएगा। और सैनिटाइज होने के बाद में वो एक तरह से वायरल फ्री है, आप उसको आराम से घर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब, देन वी विल क्लोज द सेशन। एक है, जैसे अभी आपने बोला और तरह के वायरस आएंगे, तो काफ़ी कंट्रीज में 3rd वेव 4th वेव भी आ चुकी है कोविड की, तो हम उसके लिए कैसे तैयारी करें आज से, और वो ना आए या उससे कम डैमेज हो, उसके लिए क्या ये किया है जा सबसे सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आई रियली थिंक कि इस पूरे सेशन का सबसे कीमती सवाल ये है कि भाई जो है वो ठीक है, लेकिन आगे की क्या तैयारी है हमारे पास में। अच्छा, एक चीज बताइए कि है ना, विरोधाभासी मूल्य होते हैं जीवन में। जैसे दिन का विरोधाभासी क्या होता है? रात। सुख का विरोधाभासी क्या होता है? दुख। तो आपको क्या लगता है, अगर जीवन में खाली दिन ही दिन हो, रात नहीं हो, तो जीवन कैसा होगा? बड़ा अजीब सा होगा। ऐसे ही खाली दुख ही दुख हो और सुख हो ही नहीं, तो कैसा होगा? बड़ा अजीबोगरीब होगा। तो यहाँ पर बीमारी का ऑपोजिट वैल्यू क्या है? स्वास्थ्य। तो आप सबको कोविड को थैंक्स बोलना चाहिए, जिसने हमें अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना सिखाया। पहली चीज तो ये है, अगर कोविड नहीं था तो आप में से कितने लोग हैं जो 2020 से पहले कभी दूध में हल्दी डाल के पीते ही नहीं थे, और अभी देखो हल्दी में दूध डाल के पी रहे हैं, है कि नहीं है ऐसा? तो कोविड आने से हम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए। तो बहुत अच्छी बात है कि किसी वायरस ने हमको ये सिखाया कि भाई तू कूड़ेदान नहीं है, तेरा ये शरीर
ईश्वर की नेमत है, देन है, इसका सही सदुपयोग करो। दूसरी बात, भविष्य की तैयारी के लिए आपको अपने पर काम करना है पहला, और फिर सिस्टम पे काम करना। आप हेल्दी रहोगे तब तो काम कर पाओगे। खुद अनहेल्दी हो तो ना तो आप खुद काम कर पाओगे, ना परिवार के लिए काम कर पाओगे, न समाज, राष्ट्र, देश के लिए काम कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज, इस तन का पहला पर्पस भी है खुद को स्वस्थ रखना और खुद को इम्यून रखना, क्योंकि कोविड नहीं तो कोई उसका भाई बहन आ जाएगा दूसरा। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो अभी नहीं उलझे तो आगे उलझ जाओगे। तो पहला प्राइम मोस्ट काम है अपने शरीर के ऊपर, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। जीवनचर्या में कहीं ना कहीं योग प्राणायाम को शामिल कर लेना। इससे बढ़िया और कोई प्रकरण नहीं। आपको लगता है कि नहीं मैं तो ऐसे भी दवाओं से ठीक हो जाऊंगा, हो ही रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको रोज सुबह कोई बोलता है क्या ब्रश करो, पॉटी जाओ, नहाओ धो, कोई कहता है क्या? नहीं। पतंजलि ने पहला सूत्र बनाया, अथ योगानुशासनम। योग का पहला अनुशासन है इसकी दैनिक दिनचर्या में शामिल होना। योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। माइंड इट। हमको लगता है कि ना मेरा डायबिटीज हो गया तो योग से ठीक कर लूंगा, नहीं होगा। योग जीवनचर्या है। जैसे ब्रश करना आपका जीवनचर्या है, रोज पॉटी जाना आपका जीवनचर्या है, रोज नहाना आपका जीवनचर्या है, तो योग यानी प्राणायाम, आसन, इनको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। तो आप नॉट ओनली कोविड, अन्य बीमारियों से बचे रहेंगे। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि भाई सिस्टम को कैसे हम रिकवर कर पाएंगे। तो जैसे हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही डिस्कशन फोरम में नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इसका रेगुलर डिस्कशन है कि हमें और कितने बिस्तर चाहिएंगे और कितना हमको ऑक्सीजन की डिमांड, या और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो भविष्य में काम आने वाली हैं। तो उन सब पे काम करने पर प्राइमरी फेसा या प्राइमरीली जो चीजें सामने निकल के आई है वो है हेल्थ केयर सिस्टम को अपलिफ्ट करना। हेल्थ केयर सिस्टम को अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पहले कभी इग्नोरेंस के लेवल पे हाँ ठीक है देख रहे हैं, ठीक है देख रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि बीमारी ने स्वास्थ्य का मोल बढ़ा दिया। बीमारी नहीं थी तो स्वास्थ्य का भी मोल नहीं था, लेकिन जैसे ही बीमारी आई तो अब नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम को लेके लोग थोड़ा सा अटेंटिव हुए हैं। लोगों का अटेंशन इस जगह पर गया है कि भाई भारत का हेल्थ केयर सिस्टम एक कुपोषित बच्चे के जैसा है, और हम इससे उम्मीद लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल दारा सिंह के जैसा परफॉर्म करे, तो हो नहीं पा रहा। अपने पास में समय है दिवाली तक का, ये आप मान के चलो। देखो याद करो, जुकाम आपको साल में कब होता है? 2 बार होता है, एक होली पे, दूसरा दिवाली पे। तो होली वाला तो अभी तक आप झेल ही रहे हैं अपन सब। अभी क्या है, दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के आसपास फिर थोड़ा बहुत ये होना स्टार्ट होता है। अगर तब तक हम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को 3% भी दे पाएंगे, 3-3.5% अगर बिस्तर, ऑक्सीजन, हेल्थ केयर फैसिलिटी फिलहाल भी हमने काफी हद तक कर लिया है। मतलब अगर आज की डेट में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी है। लेकिन अब नॉर्मल व्यक्ति जिसका सैचुरेशन बढ़िया है चला जाएगा तो उसको तो वहां पे नमस्कार करके बोलेंगे भाई घर जा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम का अपलिफ्टमेंट पे अब काम शुरू हुआ है। तो मैं तो भाई अपने इस सिस्टम में कोविड को थैंक्स बोलता हूँ कि लोगों को ये जागरूक किया कि भाई तुम्हारा स्वास्थ्य जरूरी है, और गवर्नमेंट को जागरूक किया कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कितना पिछड़ा हुआ है, इसको और अपलिफ्टमेंट की आवश्यकता है। तो ऐसा है कि अब स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी सारी सरकारें, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार के लिए या सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूं, सारी सरकारें अब जागरूक हुई हैं कि अगले 6 महीने का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बीमारी तो ऑलमोस्ट स्टैटिक हो गई है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने के अंत तक लगभग कम हो जाएगा। लेकिन अगले 6 महीने का प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी लोगों ने डिसाइड किया है। तो वो गवर्नमेंट का डिसीजन अपने को क्या अफेक्ट कर रहा है? अपने को तो अपना डिसीजन अफेक्ट कर रहा है। तो अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अपनी मॉर्निंग साधना में ये सारी चीजें जोड़ लीजिए, अपने इन दोनों सिलेंडरों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप किसी भी वेव में उसके हिस्सा नहीं बन जाएं कि भाई चलते हुए चलो अपन भी उसका हिस्सा बन गए। आराम से अपना स्वास्थ्य, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी स्वस्थ रखिए। डॉक्टर साहब हमारे पास 4-5 मिनट और है, तो मैं जो कुछ सवाल मुझे लग रहे हैं, वैसे काफ़ी सारे हैं, 100 से ज़्यादा हैं, बट मैं 3-4 और लूँगा, जिससे कि हम जो हमने 11:30 का टाइम रखा था तो 3-4 सवाल और ले लेते हैं।
एक सवाल ये आ रहा है कि डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स या जिनको क्रॉनिक डिजीज रहता है वो क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है, कैसे वो हाँ, इससे बच सकते हैं या कैसे उसके कोविड के बाद वो उससे क्या करा जा सकता है? बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत हर उस पेशेंट को है जिसके अंडरलाइंग क्रॉनिक इलनेस है। क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करना है? सपोज एक पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको इस वक्त में स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल की आवश्यकता है। स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल, जैसे शुगर का रेंज सब जानते हैं 123 126 मिलीग्राम परसेंटेज रहता है। तो स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल अगर रहेगा तो वो पेशेंट के चांसेस है कि अन्य बीमारियों में बहुत जल्दी नहीं उलझेगा। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए प्राइमरीली जो उनको मेडिसिन चल रही है तो रूटीन फॉलोअप करते रहें, ब्लड प्रेशर का रूटीन फॉलोअप और चेकअप करते रहें। कोई कार्डियक इवेंट पहले हुआ था जो 2020 से पहले का कोई कार्डियक इवेंट है, जैसे किसी को स्टेंट डला है, किसी को बाईपास सर्जरी हुआ है, या कोई और उसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज थी जिसके अंडर ट्रीटमेंट है, तो अपने रेगुलर फॉलो, जैसे पहले क्या था कि डॉक्टर्स को 3 महीने 6 महीने के फॉलोअप पे रहते थे लोग, अभी उसको थोड़ा सा टाइम को कम करके अर्ली फॉलोअप कर दीजिए। 1 मंथ फॉलोअप, 15 डे फॉलोअप, अपने जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनसे बात करते रहिए कि मेरा शुगर कंट्रोल नहीं है तो मैं इस शुगर को कैसे कंट्रोल करूं। बहुत सिंपल तरीका है, आप इंसुलिन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर OHA से कंट्रोल नहीं है तो OHA मतलब मेडिसिन से कंट्रोल नहीं है तो। दूसरा, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनका स्टेंट डल चुका है या जो बाईपास सर्जरी है या वेल्वुलर हार्ट सर्जरी है, तो उन लोगों को स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर एज वेल एज स्ट्रिक्ट ब्लड थिनर कंट्रोल की आवश्यकता है। जैसे वेल्वुलर हार्ट डिजीज का पेशेंट है, उसका वेल्व रिप्लेसमेंट हो रखा है तो उसका INR, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, 2 से 2.5 के बीच होना चाहिए। तो उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए कि मेरा ब्लड का रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाइए किन चीजों पर? पहला, डाइटरी कंट्रोल। डायबिटिक पेशेंट्स है तो उनको स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल चाहिए। अच्छा, ड्यूरिंग दिस एरा हम लोग कहीं ना कहीं सिडेंट्री हो गए हैं, ज्यादा पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, ज्यादा काम वाम नहीं करते, तो उसको थोड़ा बदल लीजिए। उसको क्या बदलना है? स्ट्रिक्ट सिडेंट्री स्टाइल को चेंज करके थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट करते रहना, बॉडी के साथ योग आसन करते रहना। मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हो तो घर में सुबह छत के ऊपर कम से कम आधा किलोमीटर की वॉक करना। पूरे दिन शरीर को एक्टिवेटेड रखना है। शरीर सिडेंट्री हुआ और ये बीमारी हावी हुई तो शरीर के ऊपर आपको काम करना है कि इसको सिडेंट्री नहीं रखना है। कोई काम नहीं समझ में आता तो घर का वॉशरूम साफ कर लीजिए, आपको और समझ में आता किचन में बर्तन साफ कर लीजिए, एक दिन घर पे पोछा लगा लीजिए, कुछ ऐसे एक्टिविटी करते रहिए शरीर के साथ, तो आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो क्या स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं? कुछ शरीर पर कंट्रोल करना है, दूसरा आपको डाइटरी कंट्रोल रखना है, अपना स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और अपनी अंडरलाइन डिजीज को स्ट्रिक्ट मॉनिटर करना है, और थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माइंड को भी हेल्दी रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, इनको जीवन का हिस्सा बना लेना है। आखिर कब, मैं तो हर पेशेंट से पूछता हूँ, भाई आखिर कब? जैसे लोग कहते थे डॉक्टर साहब अभी टाइम नहीं मिलता है, फिर करेंगे प्राणायाम। तो मैं उनसे पूछता हूँ आखिर कब? अब कब करेगा? अस्पताल में ICU में जाके करेगा? पहले ही कर ले। ये है। छोटे छोटे सवाल हैं डॉक्टर साहब, और ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल का क्या बेंचमार्क है, कितने पे कितना तक रहना चाहिए? कई लोग बोल रहे हैं जैसे 70% पे किसी का अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आ जाए तो उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, 85% पे क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके बेंचमार्क्स बताइए। जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस ये हैं कि 95 to 100%, 90 to 95% एंड लेस देन 90%, ये 3 कैटेगराइजेशन है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर के। तो लेस देन 90% पे पहले जो गाइडलाइन आई थी वो ये थी कि 90% के सैचुरेशन नीचे आते ही आपको हॉस्पिटल भागना है, हॉस्पिटल में भर्ती होना है। लेकिन अब ये गाइडलाइन आ गई है कि हॉस्पिटल में चूंकि बेड्स नहीं आ रहे या ऐसी बहुत ज्यादा मारामारी थी, तो ये आ गई गाइडलाइन कि अभी भी अगर आपका सैचुरेशन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के हाई फ्लो मास्क के साथ आपका सैचुरेशन 90 अबोव आ रहा है तो आप घर पे ठीक हो जाएंगे, भागना बंद करिए। जैसे 70% सैचुरेशन है, आपने घर पे हाई फ्लो मास्क लगा लिया और आपका सैचुरेशन 90 के ऊपर आ रहा है तो वेट एंड वॉच, रुक सकते हो, भागना नहीं। आपका सैचुरेशन 80-85 है, हाई फ्लो मास्क लगा लिया, सैचुरेशन 90 अबोव है, बहुत अच्छा है, आप धीरे धीरे रिकवर कर ही रहे हैं, करते जाएंगे। अपने फिजिशियन से बात करके होम केयर मैनेजमेंट लीजिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में यही सबसे ज्यादा बढ़िया प्लान ऑफ एक्शन होगा
घर में एक बढ़िया सा बिस्तर रख लीजिए, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन का कुछ ऐसा सिस्टम रख लीजिए। दवाई आपको जनरली आपको पता लगी जाती है, नहीं तो आज जब जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो मैंने थोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया काम करना लोगों के लिए कि भाई जितने मेरे पास पेशेंट आते थे सबको जितना मैं कर सकता था गाइड किया, ये दवा लो, ये मत लो, इस तरह से। तो कुछ आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो इस एरा में आपको थोड़ी सेवा करने वाले, तो आपके लिए ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपके पास साधन मिल जाएंगे। तो जो काम आपका अस्पताल में हो सकता है वो काम आपका घर पे हो जाएगा। जब आपका काम घर पे हो जाएगा तो 99% आप ठीक घर पे ही हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, मेरे से लोग पूछते डॉक्टर साहब बिस्तर बिस्तर बिस्तर, तो मैं कहता हूँ घर में बिस्तर है ना, पकड़ ले, काहे भाग के जाता है भाई अस्पताल। तो बिस्तर है, घर पे है, सुविधा भी घर पे है। तो सैचुरेशन 90 से नीचे जाने के बाद पहला काम ऑक्सीजन लाएं, बंदोबस्त करें, क्योंकि जैसे कालानी फाउंडेशन है ऐसे आपको संस्थाएं से मिल जाएगा कंसंट्रेटर, वो आप लगाइए। अगर आपका सैचुरेशन 90 अबोव आ रहा है तो भागना बंद करिए, आराम से घर पे अपने ऑक्सीजन के साथ मस्त रहिए। 10 दिन की बात और है, आप ठीक हो जाएंगे। 2 वैक्सीन रिलेटेड सवाल और आ रहे थे सर। क्या प्रेग्नेंट लेडीज वैक्सीन ले सकती हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोविड होने के कितने दिन बाद वैक्सीन लेनी है? क्या कोविड से रिकवर होते ही या नेगेटिव आते ही वैक्सीन लेनी चाहिए? प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन नहीं लेना है, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, अगर आप ठीक हो गए हैं तो ठीक होने के बाद 15 दिन से 1 महीने के बाद आप आराम से ले सकते हैं। ठीक होने का अर्थ है आरटीपीसीआर का नेगेटिव होना नहीं, मेरी बात को समझना। कुछ लोग ठीक होने का मतलब रिपोर्ट से लेते हैं कि आरटीपीसीआर नेगेटिव, कई बार आरटीपीसीआर 3-3 महीने नेगेटिव नहीं होता, लेकिन आप ठीक होते हैं। तो ठीक है ना, ठीक का अर्थ है जब आप फिजिकली बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं है, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ, बढ़िया आपका शेड्यूल है, 2 टाइम खाना खा रहे हैं, अपना ऑफिस जा रहे हैं, इसका मतलब आप हेल्दी हैं। अनहेल्दी का मतलब जब आपका डेली रूटीन अफेक्ट हो जाए, जैसे 6 घंटे सोते थे आप सो नहीं पा रहे, आप 2 टाइम खाना खा रहे थे खा नहीं पा रहे, आप आराम से 4-6 घंटे काम करते थे वो हो नहीं पा रहा, इसका मतलब अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी में आपको वैक्सीन नहीं लेना है। हल्का फुल्का जुकाम है, वैक्सीन नहीं लेना है, थोड़ा रुक जाइए। जब आप अपने वापस रूटीन को अटेन कर लें कि ये मेरा डेली रूटीन था, देन यू कैन टेक वैक्सीन। यूजुअली कोविड होने के बाद लगभग 15 दिन से 1 महीने बाद आप आपके सारे डेली रूटीन अटेन कर लेते हैं, तब आप वैक्सीन ले सकते हैं। And what about breastfeeding moms? ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को भी 4-6 महीने रुक जाना चाहिए। वैसे इसके लिए भी कोई ऐसा डेटा आया नहीं है, बट स्टिल अगर वो 4-6 महीने रुक जाए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को लगेगा तो वो मॉम पर अफेक्ट डालेगा। बच्चा तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, बच्चे की तो चिंता है नहीं, बच्चा तो माँ के दूध से नेचुरल एंटीबॉडी पाता है और बच्चा उसको कवर कर लेता है। लेकिन मदर को अगर फीवर हो गया तो अपने बच्चे को फीड नहीं कर पाएगी, या मदर को कोई दिक्कत होगी तो वो फीड नहीं कर पाएगी, इसलिए 4-6 महीने रुक के वो ले सकते हैं वैक्सीन। आई थिंक सवाल बहुत सारे हैं और ये चलता रहेगा, बट आई थिंक यू हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो जनरल हैं। कुछ स्पेसिफिक सवाल आ रहे हैं जिनको अभी हम समय के अभाव के कारण नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स लोग डाल रहे हैं, कुछ दवाइयों के लिए कंसल्ट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो मैं आपसे यही सबको बोलूँगा कि आप मेरे से संपर्क करके डॉक्टर मोहित का नंबर मेरे से ले लीजिए, एंड वो आप डायरेक्ट पूछें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी वेबिनार में उसको लेना ठीक नहीं रहेगा। एंड आई थिंक जो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर मोहित ने कहा, उसको मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, और ये हम लोग भी हमारी फैमिली में कर रहे हैं कि प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज, ये करने के बाद आई थिंक 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और ज़्यादा बीमारी हमारे दिमाग में है। डेफिनेटली सोशल मीडिया उसका एक माध्यम बन रहा है। हम लोग क्योंकि घर में रह रहे हैं, काम लोगों के चल नहीं रहे हैं, तो मैं लोगों को भी दोष नहीं दूंगा। सोशल मीडिया का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है, न्यूज़ का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उससे हम अपने आप को थोड़ा सा स्केयर कर लेते हैं। अदरवाइज थिंग्स आर प्रीटी मच इन गुड डायरेक्शन एंड डेटा इज सेइंग दैट द कोविड इज नाउ गोइंग डाउन, जो अभी हमने भी महसूस किया है, केसेस भी कम हो गए हैं जयपुर में। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एंड दिस एनलाइटनिंग सेशन। बहुत सारे सवाल लोगों के आई थिंक आंसर हुए होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पापा को वापस से, so he can give you vote of thanks. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल आई ओपनर सेशन था, मैं यही कहूँगा। और आप देखिए लास्ट तक 360 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा लगभग इतने ही लोग जो है वो फेसबुक पर भी है।
तो रियली थैंक यू वेरी मच, और हम फिर से आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। और डॉक्टर साहब के बारे में आपको एक बात बता दूं कि डॉक्टर साहब ठीक है अपने प्रोफेशन से जरूर डॉक्टर साहब हैं, लेकिन इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। और डॉक्टर साहब एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स होता है हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम सुदर्शन क्रिया, डॉक्टर साहब खुद वो कोर्स लेते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहें वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग के किसी भी ड्यूटी से आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसकी जानकारी दे पाएंगे। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सबका, क्योंकि देखिए आप इतनी बड़ी संख्या में आप लोग नहीं जुड़ते तो शायद ये हमारा जो कार्यक्रम जिसके लिए डॉक्टर साहब ने समय दिया, डॉक्टर साहब ने खुद ने समय दिया, इतना महत्वपूर्ण समय इस वर्तमान परिस्थितियों में, और हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया। लेकिन सबसे ज़्यादा साधुवाद आप सबको है कि आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े। थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक्स अ लॉट।